Then only if you detect, then only you will, if you assess, then you only will resuscitate. तो वो जो ABCD का प्रोटोकॉल है ना, वो सबको आना चाहिए. That is the basis. Then only you will make the like timely decision. कहते हैं ना कि timely decision. तो वो जब प्रॉब्लम ही डिटेक्ट नहीं होगी तो फिर हाउ विल बी लाइक टेंशन निमोथोरेक्स. सभी एग्जांपल देंगे. यू गो फ्रॉम इंडिया टू अमेरिका, फर्स्ट थिंग दे विल से ATLS. Oh, person is speaking, that means his airway is okay. Very good. Person like now distended jugular vein, breath sound diminished. What is the scenario? Tension pneumothorax, tension. But in reality, please ask the doctors also how many times they have decompressed the tension pneumothorax. How many times they have identified the tension pneumothorax. Clinically, chest X-ray wise, ultrasound wise. I was very surprised from one of the best institute. So they were presenting cases on YouTube, and like then she told, she put the needle, and then nothing came out. Are you surprised? Yes, I'm really surprised. Why did you put the needle? Then she said, no, it was not pneumothorax, it was hemothorax. Like in a tertiary care, level 1 trauma center, if you don't know before putting the needle whether it's a pneumothorax or hemothorax, this is a criminal negligence, according to my standard. This is not like you are doing some simulation. Like hemothorax, you are taking as pneumothorax, you can have lung sliding sign. You are level 1 trauma center, you can just put a probe, see the lung sign, lung sliding sign. So these kind of things are happening, and they are telling it like it's okay. It's not like 90s कि आपने needle डाली, हवा नहीं आई, फिर थोड़ी देर में blood आया. These things are not acceptable nowadays. If you ask me, international resuscitation means time dependent resuscitation. It is not like if we want to have a vascular access within 2 minutes, oxygen 15 minutes. We record our resuscitation. We have one of our assistants, she will record. Patient rolls in 11 o'clock. 11:05 oxygen started. 11:10 ECG done. 11:20 this was done. 11:30 focus was done. So we have a sheet. परंतु मेरा हॉस्पिटल बहुत बड़ा नहीं है, आपको पता भी नहीं है कहाँ है, ठीक है. But we do all those kind things. क्योंकि I am the only one who is managing. So we do accordingly like what we need to do, what we need to teach in India. So the first and foremost thing is time dependent resuscitation. आपका patient आ गया, like you are 2 hours in the resuscitation, and still we don't have a like what is secure vascular access. अभी भी कैनुला इधर से उधर जा रहा है, and we need to start blood. We need to start MTP. What is MTP? I will not ask. वो आप भर सकते हो. But how MTP started? What is the protocol? Right? So that like time dependent resuscitation. In PGI, I would request, ma'am, somebody will come and ask questions, no? Like half an hour, why EFAS was not done, or whatever. For that example, intubation is done like patient is in hypoxia, and after half an hour, intubation is done. That's not acceptable by any standard. Like you move quickly, BVM, IGEL, intubation, surgical time. 10 minutes, maximum time, 10 minutes. Don't sit on the problem. कि अभी तो देखते हैं, saturation maintain है, CO2 का पता नहीं है, because we are not monitoring CO2 in resuscitations. The portable one, वो वैसे आती है, वो they are not reliable. Monitors sometimes treat us, confuse us. Patient is something else, and they are showing an attendant saying, अरे सर heart rate तो आ रहा है, and patient is dead. But monitor also in India is a big problem. I don't know your experience, doctor, but this is a very big problem in India, monitor. And I have requested IIT people, why don't you make a CO2 monitor, portable? Because that is 1,20,000. So, like this is CO2 monitor only. You can make, IIT should consider one real problem. What we are saying, we are suffering from what we need. We need a reliable monitor, and we need a EtCO2 monitor. More than that, EtCO2 is very, very important in the resuscitation, and this is like from I think Norway, 1,20,000. So if IIT people want, they can make it in 20 or 30,000. So sir, आप जो leadership role में ना, I will really request you कि आप बोलोगे EtCO2 monitor बनाओ, portable one, तभी होगा. अब leadership is not taking any action. Ministry of Health they make, हाँ सबको CPR सिखाओ. अच्छा फिर 2 डॉक्टर आएंगे,
अंग्रेजी में CPR सिखाने लग जाएंगे, देन पीपल विल से प्लीज मेक दिस वीडियो इन हिंदी, इन तेलुगु. What ministry is doing, I don't understand. अभी स्नेक बाइट का उन्होंने कैंपेन निकाला है, जंगल में सांप काट रहे हैं, वहां एम्बुलेंस आ रही है. So this is how work done and work imagined. That is like human factor. अब आप बताओ कौन से जंगल में, आपके जंगल में सांप ने काट लिया, आपने फोन किया, एम्बुलेंस आ गई है, तो कभी फॉरनर आएगा ना, वो फोन ही करता रह जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि दिस इज व्हाट वी हैव शोन. वो तो सोचे कि एम्बुलेंस आने वाली है, आप वेट करो. सो वी आर गिविंग रॉन्ग सिग्नल्स, वी आर प्रोजेक्टिंग अनरियलिस्टिक थिंग. Somebody need to teach them. I mean, tell them, Ministry of Health Affairs, Ministry of Family, कि भाई आप CPR के वीडियो तो बनवा रहे हैं, AED के कौन लेके आएगा? आपका वो कार्डियोलॉजी कौन देखेगा उसको? आप जाइए पेशेंट को लेके, वो कहेगा 3 लाख जमा कराओ, तो वो है. और फिर आप इंग्लिश में, why are you making videos in English? This is India. I mean, this is a problem. Is it too difficult to understand कि हमें हिंदी में बनाने हैं वीडियो? अब पंजाब वाला तो पंजाबी में ही सीखेगा. अब हमारे इतना डिजिटलाइजेशन है, तो व्हाई डोंट वी लाइक ट्रांसलेट इन रीजनल लैंग्वेजेस? तो दीज थिंग्स इज नॉट गोइंग टू चेंज. So then CPR is going on, and the still goes on. We will make you Prime Minister, sir. प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, मुझे सिर्फ सर उनको बोल दो कि कभी कभी मुझे से राय ले ले बस. नहीं, दिस इज वेरी अनोइंग. What you are talking is entirely. नहीं, आप मेरा ये बताओ सर, आप बताओ, कह रहे हैं कि सबको CPR सिखाओ, ठीक है, सबको CPR सिखाएंगे. फिर 2 डॉक्टर आएंगे गंगाराम से, फिर वो इंग्लिश में क्या CPR सिखाएंगे? वो हम बाई स्टैंडर्ड कौन है? रेडी वाला, रिक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला. तो देन दे वांट बाई स्टैंडर्ड हेल्प, बट दे वांट वीडियो इन इंग्लिश. दिस इज द ट्रेजेडी. Even if सांप ने काटा है, help तो वहां एम्बुलेंस आ गई है. दिस इज सेकंड सिनारियो जिसमें मोटरसाइकिल में लेके जाते हैं. हम कहा ये ठीक है, ये ठीक है, यू प्रमोट दिस. हमारे तो मोटरसाइकिल आते हैं. यस, मोटरसाइकिल अवेलेबल हो सकती है. यहाँ भी मोटरसाइकिल में लेके आते हैं, गुड़गांव में भी काड़े कर इसके भी मोटरसाइकिल पे लेके आते हैं वो, या फिर ऑटो में लेके आते हैं. तो वहां पर वो रजनीकांत का ऑटो आना चाहिए खर्च. सो दिस इज लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड मिनिस्ट्री ऑफ, जो अपनी मिनिस्ट्री है उसमें कौन तो है, बट दिस इज लाइक इन ह्यूमन फैक्टर हाउ वर्क इज डन एंड हाउ वर्क इज इमेजिन. तो आपको पता है ना, वो कहेंगे अरे आए वो लेक्चर देके चले गए, उनको पता है यहाँ पर ये भी चीज नहीं है, वो भी चीज नहीं है, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, वो कैसे काम होता है, ये है वो. पुलिस वाले से किससे बात करो? एक नर्स से बात करो, गई अरे सर आपको पता है यहाँ में ये करना पड़ता हो. सो दिस इज ट्रेड ऑफ. तो ये जो लीडर्स है ना, दे डोंट नो हाउ वर्क इज डन. वो तो सोचते हैं हाँ ऐसा होता है यार, वो अमेरिका में था ना वीडियो, उसको इंडिया में कर दो ऐसे, बस ठीक है, हो गया सर, हाँ हो गया. गेटिंग AED in हिंदी नहीं सर, हिंदी में, हाँ एक और वो प्रॉब्लम है, वो हाँ हिंदी में आना चाहिए. और वो जब बोलते ना, कैसे बोलती है इंग्लिश में, हु कैन मिमिक, हु इज एन आर्टिस्ट, वो मुझे ही समझ में आता कि वो बोल क्या रहा है. वो जब होता है प्लीज पुट द चेस्ट ट्यूब ऑन द, पता नहीं क्या, पैड ऑन द चेस्ट, वो कहाँ समझेगा अपना इंडिया वाला. तो ये इतना, मैं आई एम आस्किंग यू सर, ये इतना मुश्किल है. ये जो हेल्थ मिनिस्ट्री के जो लोग बैठे हैं कि भाई हमारा बाई स्टैंडर्ड कौन है, या वो सीधा अमेरिका वाला खड़ा होगा उस दिन सड़क के किनारे. अभी एक RT का पेशेंट का उन्होंने कैंपेन चलाया, एक्सीडेंट हो गया, सब इंग्लिश में चल रहा है. वाह, मतलब ये क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड. भाई आप हिंदी में बोलवाओ ना, कम से कम रीजनल लैंग्वेज में तो नहीं है. मतलब बखी में दर्द तो हम यहाँ सुनते हैं, पर सब जानते हैं कि छाती में दर्द का मतलब कि यहां दर्द हो रहा है, पर इंग्लिश में, वो भी चेस्ट इंग्लिश में. तो कोई जाके आप उनको बताओ कि यार यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, प्लीज डू दीज थिंग्स. आई फाउंड दीज थिंग्स वेरी इरेशनल एंड अनोइंग. मेरी तो सुनता नहीं है, आपकी सुनेंगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे. सुनाई नहीं सर, लीडरशिप हैज टू बी वेरी, यू हैव टू क्रिटिसाइज. Narendra Jana and myself are thinking yesterday night about these regional languages, because very few people, even I do not understand this slang of an Englishman. Yes. So why should not we have in our regional languages? If leadership doesn't put their foot down, अब nurses, they are doing GNM, they are practicing in the hospital. मैं आपको भी ये देखना है कि like your nurses, are they qualified? You bring out some kind of circular कि भाई ये जो हॉस्पिटल में नर्सेज काम कर रही है, are they qualified?
हाँ सर मैं जीएनएम कर रही हूँ, पैसा 18,000 चाहिए। अरे व्हाई द हेल यू वांट टू वर्क इन अ हॉस्पिटल एंड प्ले विद द लाइफ ऑफ पेशेंट? यू आर ए वॉकिंग टाइम बम, आप किसी पे भी जाके फूट जाओगे, हम क्या करेंगे? पर मजबूरी है क्योंकि ये चलता है ना। आप इसको भी छोड़ के आप देखो नर्सिंग का क्या बुरा हाल है, दे डोंट नो। मतलब मेडिसिन का नाम भी नहीं है, पीजीआई का तो अलग है, एम्स का अलग है, इनका है। मतलब इतना बुरा हाल है कि पूछो मत। तो ये जब तक लीडरशिप नहीं बोलेंगे ना, मेरे लेक्चर देने से कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कह रहा हूं कि हमें एक सिंगल इमरजेंसी नंबर नहीं है। अमेरिका में 911, दैट राइट डॉक्टर? 911, 999 यूके, यहां पर अभी 112 चल रहा है, अभी 1083 हो जाएगा। अभी क्या? दिस इज ए फेलियर ऑफ डॉक्टर्स। आप सरकार को ये तो बोल दो, मोदी जी को जो इतना डिजिटलाइज कर रहे हैं कि एक नंबर तो दे दो, उसमें दिक्कत क्या है? वैसे इफ आई आस्क यू ऑल ऑफ यू, अगर हम कहें कि 111 है भाई, आप इंडिया के किसी भी कोने में है, यू नीड हेल्प, डायल 111, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये भी सरकार को मतलब ठीक है, इट इज ए स्टेट सब्जेक्ट, पर सेंटर जब भी होते दे विल ओवरराइड ऑल द इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ 1083 है, कहीं 112 है, कहीं 786 है, वो पेशेंट तो वैसे कंफ्यूज होगा, अटेंडेंट और कंफ्यूज, दोनों ही कोलैप्स हो जाते हैं। दिस इज लाइक, डज इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट ए 3 डिजिट नंबर इन इंडिया? मैंने इतनी बार लिखा है, आई रिटन एवरीवन, बट बस बहनों भाइयों, तो ये लीडरशिप को आपको लेना पड़ेगा। आप किसी तरह से आप पहले ट्रिपल डिजिट तो कराओ। अगर किसी को, हमारे को एक्सीडेंट हो, आप किसको बुलाएंगे? वो यहां लिखता है 1083 हाईवे पे, वैसे 112 है। और अब तो और भी अच्छा हो रहा है, पुलिसमैन आर गोइंग टू एक्सीडेंट साइट एंड दे आर जस्ट पिकिंग एंड थ्रोइंग पेशेंट्स। वो भूल जाओ, देयर आर सो मेनी, आई मस्ट नॉट गो इनटू डिटेल, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज गेट ए ट्रिपल डिजिट नंबर इमरजेंसी हेल्पलाइन। ये तो हमारी अचीवमेंट होनी चाहिए ना। ये आईएमओ को देखना है कि भाई आप ट्रिपल डिजिट, उसमें मैम उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक नंबर ही तो आपको फ्लैश करना है। जैसे 112, आप इस 112 को आप कर दीजिए पूरे इंडिया में। इट्स नॉट लाइक स्टेट विल हैव देयर ओन से, देन दे विल हैव एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू देयर विम्स एंड फैंसी। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन इंडिया। एक तो ऐसा काम कर लो कि हाँ यार, इंडिया में जाओगे ना तो आपको 112 पे डायल करना, फिर जैसे भी, चाहे वो मदद करे नहीं करे, पुलिस वाला जैसे भी डील करे, पर कोई आ जाएगा। और कोई आ जाता है तो थोड़ा रिलीफ तो वैसे मिल जाता है कि हाँ कोई आ गया है। अब यहाँ कंफ्यूजन ही मचाया जा रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट के वी मस्ट हैव, एंड यू विल petition, you will raise your voices कि at least we need to have a single uniform pan-India number. Okay? I think I'm done. Thank you. Too much criticism not good.